विकास सर स्टार्ट करें आप। गुड इवनिंग सर। सर वॉइस नॉट ऑडिबल। सर वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, सॉरी। इट्स ओके सर। बिहार की दो मूलभूत समस्या बताइए, सबसे बड़ी समस्या जो बिहार की है। पहली समस्या जो मुझे लगती है हेल्थ सेक्टर की, यहाँ जो सिचुएशन है वो काफ़ी बुरा है। और सेकेंड जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी बहुत खराब है यहाँ पे। ओके। गरीबी। सर गरीबी है वो एक आउटकम। मैं उसे गरीबी को एक आउटकम भी मानता हूँ। गरीबी तो समस्या है लेकिन उसे मैं एक आउटकम के रूप में मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत पुअर है, हेल्थ कंडीशन काफी पिछड़ा हुआ है, तो आउट ऑफ पॉकेट भी लोगों का खर्च हो जाता है हेल्थ के ऊपर। ओके। हाउ विल यू डिफाइन पॉवर्टी? गरीबी को कैसे डिफाइन करेंगे? सर अकॉर्डिंग टू Tendulkar Committee, the poverty has been defined as a situation when a person is not able to buy the uh, uh, basic commodities of their life such as food, shelter, health conditions like that. ओके। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से आपने जिक्र किया, इंडिया में पॉवर्टी कितना % है? Sir, according to Tendulkar Committee, I'm not able to recall exactly, but I can make a guess if you'll allow me, sir. हाँ, श्योर। It was around 42%. ओके ओके। What idea of poverty was suggested by Amartya Sen? Can't able to recall, sir, precisely. Okay. Have you heard about relative poverty? Yes, sir. Okay. What is that? Relative poverty is a condition when a person not able to buy or not able to follow the mm, means sorry sir, not able to tell you precisely. Okay, okay. Recently, Parliament has passed a bill uh, related to some banking laws, insurance and banking. Are you aware of it? Yes sir, little bit. So the parliament has passed a bill with respect to the insurance regulation. So the current motto of parliament is to uh, bring the insurance sector into a privatization, into a private sector. Suppose currently the government of India's contribution or shares in the insurance sector is more than 51%. So it want to make disinvestment with respect to the insurance sector, sir. Okay. Who is the regulator of insurance sector? Sir, IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay, okay, very nice. What is your optional? So my optional is geography. Geography. Yes, sir. Where geography ends, globalization begins. Can you elaborate it? Where geography ends, globalization begins. Yes, sir. According to me, this is referring to a condition when the linkage is getting developed out of the geographical reach. Suppose if you consider India, so the out of the geographical reach of the Indian boundary, if you are making relationship with some other countries whose geography lies outside the territory of India, and in that condition, if you are making some relations with respect to the trade and services,
then I think that is referring to that condition. So you are making some relationship out of the territorial reach of the particular unit of the uh, uh, unit of the entity or unit of the nation. So Okay, globalization very refers. nice. Okay. What qualities do you possess as an administrator? Sir, as an administrator, I think based on my technical skill, I can also put some expertise in my administrative skill. Being an engineer and being a deputy manager in this particular private firm, I have experience of 10 years. So especially with respect to some special system which can be employed or deployed in the administrative sector, such as if you currently I'm working for the CCTV, fire system, uh, CEMS system, suppose environment monitoring system that can have a special application in the administration of the Bihar. Apart from this, my personal trait is, if you consider my personal trait, I have what I feel that uh, I have the quality of acceptance. I can easily accept whatever my fault is, and I always try to make improvement in that, sir. Okay. So I have observed while working in corporate sector, they gave you the position of manager. And when it comes to public sector, they gave you position as an administrator, like Bihar Administrative Service. Okay. Yes, So yes. can you tell me what is the difference between administrator and manager, and which you consider suitable for Indian system or administrative system in India? Sir, according to me, manager referring to a particular means managing the task of a particular domain only. Suppose I'm a manager of a particular company, so I have been given a particular task of a particular area and particular system only. And but if you consider for the administrator think or manages overall system. It also includes the technical aspect. It also includes the administrative aspect, human resources aspect, availability of the resources, how to make the streamline, how to make a linkages between the input and output. So everything encompasses under the administrative system. But different committees have told that administration should be management like, because when it will become management like, decision making process will fasten, uh, the single window system will be there in place, and that system will be more effective. Don't we have a legacy Yes, of sir. British, that we are still continuing with the administrative system? माई बाप राज अभी भी चल रहा है. Don't you think it should change? Yes, sir. You are truly right, sir. आप सही कह रहे हैं, sir. So give your opinion. सर मेरे हिसाब आई एम कमिंग टू हिंदी स्ट्रीम है, सर. सर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम्स है, उसमें अगर मैं एक्सपर्टाइज को लेके आता हूँ तो इट विल तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को और एफिशिएंट बना सकता है. तो अगर आप मैनेजरियल जो स्किल्स है उसको अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाते हैं, तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी है, जो पावर है, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. तो मुझे नहीं लगता इन दोनों को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है. ये मेरा परसेप्शन है. मुझे ऐसा लगता है कि इनको हम क्लब करके और लेके चल सकते हैं. Very nice. Sir, एक प्रभाव है, वन हु रूल इंडियन ओशियन रूल द वर्ल्ड. यस सर. प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या महत्व है, इस प्रभाव? सर प्रेजेंट सिनेरियो में इसे हम देख सकते हैं कि जो इंडियन ओशन एरियाज को कंट्रोल कर रहा है, उस वो ओवरऑल जो इंडियन ओशन के सराउंडिंग्स में जो भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 47 ऐसे नेशंस हैं जो इंडियन ओशन के सराउंडिंग से या उसके हिंटरलैंड से जुड़े हुए हैं. तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम देख सकते हैं कि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, स्पेशली उनका जो मैरीटाइम जो एक्सपेंशन है, उसको लेकर के ये बात बहुत हद तक सही कही जा रही है
कि जो इंडियन ओशियंस में जिनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वो जो नियर बाय अपना इंडो पैसिफिक रीजन है उनको भी डोमिनेट कर सकते हैं और सराउंडिंग्स के जो भी नेबर्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनके ऊपर वो वर्चस्व और अपना अधिकार बना सकते हैं। तो इन दिस में देखा जा सकता है कि पूरे वर्ल्ड को वो कवर कर सकते हैं। और दूसरा रीजन ये भी है सर कि इंडियन ओशियन बहुत ही इम्पोर्टेंट ओशियन है। अगर आप देखें ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के डेट में 75% ट्रेड का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इंडियन ओशियन से ही हो रहा है। अगर आप कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट को देखते हैं, अगर बाबला मंडेब हो गया या फिर पर्शियन गल्फ वाला रीजन हो गया, वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया या फिर मलाक्का स्ट्रेट हो गया, इन सब रीजन के थ्रू बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड का जो है सो वहाँ पे आवागमन होता है सर। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं कि वन हु रूल्ड इंडियन ओशन इज लायबल टू रूल इंटायर वर्ल्ड। अभी कौन रूल कर रहा है आपके हिसाब से? सर अभी रूल एक्चुअली रूल स्पेसिफिकली कोई रूल नहीं कर रहा है यहाँ पे। सबका यहाँ मतलब सबका यहाँ अधिकार है, लेकिन मोरल लेस अगर देखा जाए तो इंडिया का काफी अच्छा पकड़ है। वैसे तो इंडियन ओशन नाम ही पड़ा इंडिया के नाम से, तो इंडिया का यहाँ अच्छा पकड़ है और चाइना का भी है। अगर आप देखें तो यूएस की भी प्रेजेंस है। अगर इंडियन ओशन में देखें तो डीगो गार्सिया करके एक आइलैंड है, वहाँ इंडियन की सॉरी यूएसए का वहाँ पे नवल बेस है, एयरफोर्स बेस है। तो देखें तो ये इंडियन ओशियन जो है किस प्लेट पे स्थित है? सर इंडियन ओशन बेसिकली सर इंडो ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है सर, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है उस पे यस सर। एक्चुअली यहाँ दो तीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसकी क्या विशेषता है? सर इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो जो आपके जो अफ्रीकन प्लेट है उससे अलग होकर के निकली थी। तो उसकी स्पेशल विशेषता ये कह सकते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बाइफरकेट होके निकली थी तो फास्टेस्ट मूविंग प्लेट कौन है? फास्ट मूविंग प्लेट सर पैसिफिक प्लेट सर। Are you sure? नॉट श्योर सर, अच्छा, दिस इज अ गेस। कोरल रीफ इसका निर्माण यस सर। कैसे होता है और समुद्र के किस क्षेत्र में होता है? सर कोरल रीफ का निर्माण सर्टेन कंडीशंस में होते हैं। जैसे समुद्र के अगर आप ट्रॉपिकल रीजन को लेते हैं सर, ट्रॉपिकल वाटर्स जो हैं वहाँ पे सर्टेन जो कंडीशन है वहाँ की टेम्परेचर अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होनी चाहिए। प्लस वहाँ जो वाटर की जो क्वालिटी है सर बहुत ज़्यादा प्योर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ तो ऐसे कंडीशन में कोरल जो ऑर्गेनिज्म है उनका ग्रोथ होता है। अब जब क्या होता है कि कोरल ऑर्गेनिज्म क्या है सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं, तो जब वो कंडीशन फिर से अगर अनमेट होता है, अगर सपोज वहाँ पे वो एडवर्स कंडीशन क्रिएट होता है, तो उनके जो सिम्बायोसिस पार्टनर है वो उनको छोड़ के जाना चाहते हैं और वैसे कंडीशन में कोरल का ये हो जाता है, मतलब लीचिंग हो जाता है। जब लीचिंग हो जाता है तो उनके स्केलेटन एक के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं और उस तरीके से कोरल रीफ का निर्माण होता है। चलिए अभी ब्लू इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही है। यस सर। और खास के बे ऑफ बंगाल में नोडल्स को लेकर के, डिपॉजिट ऑफ नोडल्स को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। इसके बारे में ये सर ब्लू इकोनॉमी को लेकर के चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो मराइन सिस्टम है, मराइन जो रिसोर्सेज है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का पॉसिबिलिटी है सर। जैसे अगर हम मराइन सिस्टम में देखते हैं तो हमारे जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे जिनका हम एप्लीकेशन, जिनका हम हार्डवेयर टेलीफोन मीन्स
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में उसका यूज करते हैं। तो उसमें से एक आता है आपका पीएम मॉड्यूल्स, उसको लेकर के मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ना, उसको लेकर के साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेस, अदर रिसोर्सेस हैं, जैसे हायर अर्थ एलिमेंट जैसे हो गया मैंगनीज हो गए, कोबाल्ट हो गए, ऐसे ऐसे तत्वों का वहाँ पे रिसोर्सेज को लेकर के ब्लू इकोनॉमी को बात कही जा रही है। हम बिहार आते हैं। बिहार में नेपाल और बिहार के बीच में काफी डिस्प्यूट कुछ दिनों से हो रही है, ठीक है। यस सर। एक वेस्ट चंपारण में एक क्षेत्र है, उसको लेकर Yes, के sir. काफी चीज हो रहा है। उसके पीछे Yes, एक sir. ज्योग्राफिकल रीजन है, क्या Yes. रीजन? सर, जो नेपाल और बिहार के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, वो है सर एक सुस्ता करके एक लोकेशन है, जो जिसे ऐसा माना जाता है कि जो गंडक रिवर है, जो वहाँ नारायणी रिवर के नाम से जानी जाती है, वो अपने कोर्सेज को शिफ्ट करते रहती है। तो इस वजह से जो डिमार्केशन हो रहा है ना, वो उस रीजन का, उस एरिया का, वो डिमार्केशन में थोड़ा एम्बिग्यूटी आ रही है। तो सुस्ता रीजन को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है सर। ओके रवि, विकास Yes, सर sir. से लो अपना ये फीडबैक। ओके सर, ओके सर। हम्म